বিহঙ্গ মার্গের সেবায় থেকে যারা প্রতিনিয়ত দেশমাতৃকার সেবা করে চলছেন, স্বর্ণিম ভারত গড়ার কাজে যাদের অংশ কিছুমাত্র কম নয়, যাদের সব সময় আমাদের মনে রাখতে হয় স্বর্ণিম ভারত গড়ার কাজে, সেই দুই রুহানি কমান্ডারকে আমরা আহ্বান জানাবো ভারত মাতৃকার পতাকা উত্তোলন করতে। সৌমি বোন, জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। ओम शांति शांति। কালো মেঘ ছিঁড়ে আকাশের বুকে মুক্তি সূর্য এঁকে, বাতাসের বুকে পাখি ডানা মেলে রোদ্দুর গায়ে মেখে। নির্ভয়ে শিশু চলেছে এগিয়ে, দূরে ঠেলে যত ভয়, বাতাসে বাতাসে গান ভেসে ওঠে ভারত মাতা কি জয়। প্রাণ দিয়ে যারা করলো স্বাধীন আমাদের দেশটাকে, শক্ত শিকল ছেড়ে মুক্ত করলো ভারত মাকে। ভারত ভূমিতে নূতন ভোরের ঘটলো অভ্যুদয়, সাহসী কণ্ঠে বলতে শেখালো ভারত মাতার জয়। সেই সুজলা সুফলা ভারত মাতার বন্দনায় নৃত্য পরিবেশন করবে আমাদের ছোট্ট আরাধ্যা বোন।
26শে জানুয়ারি দিনটা আমাদের এই বরানগর তথা শ্যামনগরের ব্রাহ্মণ আত্মাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অদ্ভুত এক যোগ ড্রামার। স্বয়ং বাবা যেখানে বলেছেন বন্দে মাতারাম, সেই ভিত্তিতে আমরা ভারত ভূমির সাথে সাথে সুযোগ পাই মাতৃবন্দনার, অর্থাৎ মাতৃ সম দুই দিদির সমর্পণ দিবস পালন করার। পবিত্র এক ক্ষণ এই সমর্পণ। অবশ্যই কোনো শ্রেষ্ঠতা বা বিশেষতা আছে, তাই তো ড্রামা অনুসারে সমর্পণ হওয়ার পরবর্তী সর্বস্ব ত্যাগী হওয়ার পর অন্যান্যদের সেবা করার জন্য নিমিত্ত হয়েছিল। না, এ কথা আমার নয়, স্বয়ং বাপদাদা 1972 সালে বলেছিলেন। বাবার সমান সদা স্নেহ আর সহযোগের পালনা প্রদানকারী মাতৃসম দুই বড় দিদিকে আমরা এখন দেবী রূপে সাজিয়ে তুলব। तुझे देख कर जगवाले पर तुझे देख कर जगवाले पर यकीन ही क्यों कर होगा। तुझे देख कर जगवाले पर यकीन ही क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ओ, तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है। जो तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, ओ ओ ओ ओ। अंग अंग तेरा रस की आजकल गंगा, इतना ठंडा ठंडा क्यों है? ठंडा में जम गए क्या? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का। राग रंग रस का संगम, आधार तू प्रेम कहानी का। मेरे प्यासे मन में यूं तेरी जूं रेत में झरना पानी का, यूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को, अपना रूप दिखाने को, तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। ওম শান্তি। 33 বছর ধরে সাকার পালনা, 53 বছর ধরে অব্যক্ত পালনায় আমরা এই ব্রাহ্মণ আত্মারা
প্রতিপালিত হয়ে আসছি। এখন সময় এসছে তার রিটার্ন দেওয়ার। আমরা যে পালনা পেয়েছি অপরকেও সেই রকম পালনা দেওয়া, অর্থাৎ অন্যরা সাকার বা আকারের থেকে পালনা পাওয়ার অনুভবের সৌভাগ্য প্রদান করাই আমাদের কর্তব্য। অর্থাৎ এই ব্রহ্মা বৎসদের কর্তব্য পুরনো যারা যেরকম পালনা পেয়েছে সেই অনুভবের অনুভব করানো। এই কর্তব্য পালনে আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিদিরা। বাস্তবে শিব পিতাকে পিতারূপে আর ব্রহ্মা বাবাকে মাতারূপে আমরা পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে বাপদাদার কাছ থেকেই মাতা পিতার পালনা আমরা পেয়েছি। সমগ্র কল্পের সবচেয়ে ক্ষুদ্র এই সময় সঙ্গম যুগটুকুই হলো বাপদাদার পালনায় প্রতিপালিত হওয়ার সময়। বাপদাদার প্রতিপালনে অবিনাশী প্রাপ্তির উত্তরাধিকারী গড়ে তুলতে প্রতি মুহূর্তে সহযোগী হন আমাদের অতি প্রিয় এই দুই দেবী। তাদের মমতাময়ী মাতৃত্বের প্রতিফলন আধারে নৃত্য পরিবেশন করবে পূর্ণিমা। পূজ্য স্বরূপকে অভিবাদন জানালেন পূর্ণিমা বোন। বাবার সমান পালনহার কথাটা প্রসঙ্গ আসাতে অনেক দাদিদের কথাই মনে পড়ে, কিন্তু যার কথা সর্বদা বড় দিদিদের কাছে শুনি এবং অনেক বরিষ্ঠ দিদিদের কাছেও শুনে এসেছি, একবার আমরা তাকে স্মরণ না করে থাকতে পারি না এই মুহূর্তে। হ্যাঁ, তিনি হলেন
পর্দাদি ব্রহ্মা বাবাকে যিনি 3 রূপে প্রত্যক্ষ করতেন, যার সান্নিধ্যে থাকলে সাকার বাবাকে না পাওয়ার আক্ষেপ ঘুচে যেত, যার স্নেহের পরশে অনেকেই তার দৈবী শক্তির অনুভব করেছেন, যার সঙ্গের রঙে রঙিন আমাদের এই দুই দিদি। জানকী দাদির একটি লেখা থেকে জানতে পারি ভীষণভাবে একান্তবাসী থাকতেন বলে তিনি পর্দাদি। বাচ্চাদের অলৌকিক জন্মের সাথে সাথেই যিনি একটাই শব্দ উচ্চারণ করাতেন, মেরা বাবা। ছোটবেলা থেকে পার্থিব রত্ন নিয়ে খেলা করেও অবিনাশী রত্নেতেই যা শৃঙ্গার ছিল, তার জীবনের ঘোষণা বা ম্যানিফেস্টো কি ছিল সেটা আমরা একটু জেনে নেব সৌমি বোনের গানের মাধ্যমে। ओम शांति। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा सहारा मिले जो तुम्हारी हंसी का, भुला देंगे हम सारा गम जिंदगी का। तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। তাহলে দিদিদের এই বিশেষ দিনে আমাদেরও উপহার হোক দিদিদের কাছে সেই অঙ্গীকার করা যে আমরা বাবারই থাকব, আমরা অলৌকিক পরিবারেই একত্রিত হয়ে থাকব। কি সবাই একমত তো? দিদিকে এই উপহারটা দিতে আমরা রাজি তো? আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান একটি ছোট নাটক। স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের কলস মাতাদের উপর রেখেছিলেন, সেই নারী শক্তির আধারেই সেই নাটক কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হচ্ছে।
नारायण 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 नारायण। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी को नारद का नारायण नारायण। क्या बात है, आज बहुत स्पेशल लग रहे हो। नारायण नारायण माते, आज मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, आप सभी देवियों का तो पूजा सारा संसार करता है, लेकिन नारियों का भी पूजा हो रहा है। पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा समान समारोह मनाया जा रहा है। माँ, आप स्वयं चलकर देख सकती हैं। माँ, चलो हम भी चलकर देखते हैं। नारायण 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 नारायण। माते, ये देखिए, ये नारी शक्तियाँ सारे विश्व की सम्मान धरोहर है। ये सब आज मैं एक ऐसी नारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने सारे भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया। भारत का रानी लक्ष्मीबाई को कोटि कोटि प्रणाम है। ये देखिए माता, नारी महान शक्ति रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंतिम समय तक लड़ा और भारत माता के झंडे को झुकने नहीं दिया। ऐसी महान नारी को सारा विश्व नमन करता है, नमन करता है। धन्य है ऐसी नारी। नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी, राम। प्रणाम माँ दुर्गा, प्रणाम माँ लक्ष्मी। मेरी प्यारी भाई और बहन, मैं 14 साल की उम्र में मैं झांसी की रानी बन गई और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। ऐसे ही हर मानव को भगवान ने एक लक्ष्य फिट करके भेजा, तो उस लक्ष्य को पहचानिए। मैं नारी हूँ, मैं कमजोर हूँ, इन विचारों से बाहर है। मैं और अपने आंतरिक शक्ति को पहचानो। शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। नारायण नारायण। माते, मैं एक और ऐसी नारी से आपको मुलाकात करा रहा हूँ, जिन्होंने बहुत ही बड़े कर्तव्य किए हैं। नारायण नारायण। मातंगनी हाजरा, एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 72 साल के उम्र में भी अंग्रेजों का मुकाबला किया, अंतिम सांस तक लड़ी और भारत माता के झंडे को झुकने नहीं दिया। ऐसी महान नारी को भारत का गौरव है, भारत का गौरव है। मैं ऐसी नारी का स्वागत करता हूँ। मातंगनी हाजरा। नारायण नारायण।
नारी के बारे में आपको परिचय कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने भी अपना गौरव प्राप्त किया है। सिंधु ताई, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा, जिन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से निकलकर अपना तो जीवन बनाया ही, महाराष्ट्र के सैकड़ों बच्चों के साथी बन गई, उनका सहारा बन गई। उनका ब्रह्मा कुमारी संस्था से बहुत गहरा लगाव था। 3 साल पहले उन्होंने कहा था, ये संस्था नारी उत्थान के लिए बहुत बड़ी कार्य कर रही है, जो एक विश्व में मिसाल कायम करेगी। नारायण 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 नारायण। बात ऐसी है, मेरे लिए सारा जनाजा निकला, मेरा जनाजा निकला। सारा जहान में कोई नहीं था मेरा, लेकिन मेरा सारा जहान में जनाजा निकला। बस वैश नहीं मिले, वैश नहीं निकले, जिनके लिए मेरा जनाजा निकला। फिर काय का इंतजार करना, किसका इंतजार करना? दुख आया, कुछ भी आया, हंसते हंसते सही दिखा। यही सीखा मैंने जिंदगी से। और एक बहुत अच्छी बात सीखी, जब मैं बाबा के घर मधुबन गई तो उधर मुझे लगा मुझे पिता मिल गया, उधर मेरा पिता मिल गया। और एक बात उधर की बहुत अच्छी लगी, वो ये कि और जगह भाई लोग जमा होते हैं ना, आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, पर उधर भाई लोग इकट्ठे होते, बहुत प्यार से। ये एक नई चीज़ देखी उधर। और एक चीज़ देखा, हर जगह महिला लोग खाना बनाती है, बहन लोग बनाती है, और भाई लोग प्रधान होके खाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भाई लोग पकाते हैं, बहुत अच्छे से पकाते हैं, और बहन जी लोग बड़े प्यार से खिलाते हैं। और एक सबसे बड़ी मजे की बात, मैंने उधर अपने आप को भी पहचाना और अपने बाप को भी पहचाना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब मुझको क्या नारायण नारायण। अब मैं एक और ऐसी नारी का दर्शन करा रहा हूँ, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत का कोटि प्रणाम है। नारायण नारायण। हम अच्छे विचारों के साथ सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक छोटे से विचारों के साथ अच्छे स्नेह कर सकते हैं। Spread love everywhere you go. First of love in your own home. Give love your children, wife or husband, next door neighbor. Be the living expression of God kindness. Kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your face, kindness in your warm greeting. Thank you. God bless you. अपने लिए तो औरों को ही। नारायण नारायण। माते, अभी मैं एक ऐसी और नारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने पृथ्वी पर नहीं अंतरिक्ष में भी अपने कदम जमाए हैं। माते, मैं उन नारी को स्वागत करता हूँ। सुनीता विलियम का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत I think that when we leave this planet, we all go as humans, not as people from one country
or another, we all are humans. We work together. And this is the only planet of human beings that we know of. So, we should have an interest in preserving it. We do not see any borders from space between the countries. Oh, great mothers and sisters, as I accomplished my task by walking alone on my way, sometimes you also have to walk alone. So don't fear and come ahead. A true God power is always with you. हे माताओं और बहनों, जीवन में सफलता पाने का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो परमात्मा की दुआएं और शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं। परंतु नारद, आज की नारी तो अपने आप को पुरुषों से कम समझती है। नारायण नारायण माते, लगता है स्वर्ग लोक का नेटवर्क बहुत वीक है, इसलिए पृथ्वी लोक का अपडेट आपको नहीं मिल रहा है। आज की भी नारी कुछ कम नहीं है। आज की नारी तो कुश्ती में भी अपने को आगे रखा है, ओलंपिक खेलों में अपना स्वर्ण पदक पाया है। मैं ऐसी नारी को बुलाने जा रहा हूँ जो पहलवान है, कुश्ती में भी अपने को आगे रखी है। गीता फोगाट का स्वागत है, स्वागत है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे मंगल 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 मंगल। सूरज तेरा चलता रहता भक्ति तुम्हें करते हैं प्यारे, मंगल मंगल मंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे ये बापू कहते थे बारी छोरी अभी छोरों से कम है के? सबसे पहले तो मैं इस तरह इंस्पायरिंग स्पीच दूंगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अपने बापू को शुक्रिया करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और इतनी सफल हूँ। हमारे ऊपर दंगल फिल्म बनी, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं आज उन सभी माता पिताओं से कहना चाहूँगी जो अपनी लड़की को कम समझते हैं। आज आप सभी प्रण लें कि अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे भी और उन्हें कामयाबी बनाएंगे। जय भारत, जय भारत। कहानी पग पग प्यारे। नारायण नारायण। सचमुच, तुमने तो आज मुझे प्रसन्न कर दिया। नारायण नारायण। देवी, अभी तो दर्शन बाकी है, अभी तो केवल आपने पुरुषों का ही नाम सुना है। आज की मैं एक और ऐसी नारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो स्वयं में एक आध्यात्म शक्ति है, जो स्वयं शिवमय है। उनकी मुख से जो वाणी निकलती है लगता है जैसे शिव बाबा की वाणी निकल रही हो। मैं स्वागत करूंगा मैं शिवानी बहन का। स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। आज का जो विषय है, महिलाएं संस्कृति की रक्षक है। कैसे? दो चीज है जो सिर्फ नारी कर सकती है, जिसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। एक नारी बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक एक आत्मा को अपने गर्भ में रखती है। हमारी जो भी साइकोलॉजी बनती है, पर्सनालिटी बनती है, वो सारा कुछ उस 9 महीने में बन जाता है। इसलिए
वुमेन इन्फ्लुएंस सोसाइटी द मोस्ट, क्योंकि समाज में हर एक व्यक्ति को जन्म देने वाली एक महिला ही है। पहले के समय में कहा जाता था कि कृष्ण की फोटो लगाओ तो बच्चा वैसा होगा। तो ऐसे संस्कार एक दिन में तो नहीं बनते, इसलिए हर एक सोल को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वुमेन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पावर मिलती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो फिर हमारे सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, ये सिर्फ हमारी नहीं है, इससे आने वाली पीढ़ी का व्यक्तित्व बनता है और वही पीढ़ी आगे आने वाले समाज का निर्माण करता है। इसलिए एक लड़की होकर हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूँ, मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, ये मेरी लाइफ है। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ पावर मिलती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ओम शांति। नारायण। धन्य है ऐसी भारत माता जहाँ ऐसे वीर पुत्रियों का जन्म दिया। धन्य है भारत की संस्कृति, धन्य है। नारायण नारायण। भारत माता को नारद का कोटि कोटि प्रणाम है। नारायण नारायण। तत्व रमनते जी हाँ, जब आपके घर में बेटी आती है ना, तब आप समझ लीजिए देवी आई है। तब घर में सुख शांति और संपदा का वास होगा। भारत को तब विश्व कहलाए और मेरी गरिमा तभी को प्राप्त हो सकती है। नारद और आप सभी ने सुना कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ ही सुख शांति होती है। इसलिए नारी को स्वयं ही शिव की शक्ति बनकर अपना भविष्य उज्जवल करना है और अपना आत्मसम्मान अर्थात उनके हितों की रक्षा करनी है। आप भी अपने मुख से कुछ अनमोल वचन बोलिए। हे नारद और मेरी प्यारी सभी बहनों, मैं आप सभी के अंदर छुपे लक्षणों और गुणों का उदाहरण हूँ। इसलिए जब नारी गृह में प्रवेश करती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। इसलिए मैं आप सभी नारी शक्ति से कहना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अंदर की शक्ति को उजागर करें और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित ना हो। भारत की संस्कृति संपूर्ण और धन्य है। आप सभी अपनी संस्कृति को मान देंगे तो सारा विश्व आपके आगे नतमस्तक होगा। नारायण नारायण। सुना पृथ्वीवासियों, नारी का सम्मान। माताओं एवं बहनों, अगर सभी नारी के सम्मान करेंगे
ऊंचे संस्कृति को अपनाएंगे तो सारा भारत सोने का चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु कहलाएगा। ऐसी नारी शक्ति को पहचानिए और ऊंचे विचार लाइए। ऊंचे विचार होंगे, ऊंची सृष्टि की रचना होगी और नारी का सम्मान होगा और सारा विश्व बदलेगा। नारायण 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 नारायण। तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी जगाने को ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति, तो जग से रहती है न्यारी। वो आत्मा है सबकी प्यारी, जो जग से रहती है न्यारी। वो आत्मा सबकी प्यारी, जो न होती प्रभावित कहीं। ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले। पुरानी बातों को जो मन से निकाले। न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भर निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ज्ञानी दासी से तू है परे। समाधि सभी की व्यवहार को, समाधि सभी की व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाधि की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगाए तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की नजर तुझ में शक्ति। सत्य असत्य बुझा देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगाए तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की
सबसे आगे बढ़ाया है ना, तो सारी दुनिया ही नारी शक्ति को सम्मान देती है। तो ये दरबार अच्छा लग रहा है ना, ये रोज रोज रखता रहे तो आप लोग चाहते हो ना। तो अभी डांस करेगी, ऐसा दरबार कहाँ, हमारी जो दो छोटी छोटी परियां। স্বয়ং পরমপিতা করাবান হার হয়ে বাচ্চাদের করণ হার বানানোর তিলক লাগিয়ে দেন। বাগদাদার স্মৃতিতে আমরা সমর্থী হয়ে উঠি। তাই তো বাগদাদার দরবার বিশ্ব কল্যাণকারী দরবার, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দরবার এই অলৌকিক দরবার। এমনই এক নৃত্যের মাধ্যমে সেইটার প্রকাশ পাবে কৃত্তিকা এবং তৃষা বোনের নৃত্যের মাধ্যমে। সমাজ যখন নারী শক্তিকে নিয়মান করতে শুরু করলো, পুরুষ সমাজ যখন নিজেদের সুবিধার্থে নারীকে নরকের দ্বার হিসেবে কাঠগড়ায় তুলে ধরল, সেই রকমই সঠিক সময় অর্থাৎ 1936 সালে আদিদেব ব্রহ্মা শুরু করলেন এক আধ্যাত্মিক অভিযান, যার নেতৃত্বে রইল নারী শক্তি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর রাজযোগের শক্তির দ্বারা ভারত তথা সারা বিশ্বের কাছে এই নারী শক্তি আধ্যাত্মিক জাগরণের জ্যোতি প্রজ্বলিত করল। যারা এই জ্যোতি জাগাতে পারে সেই মুক্ত নারী কণ্ঠে কেমন খুশির ছোঁয়া এলো, সেটা আমরা একবার দেখে নেব আশিস ভাইয়ের নৃত্যের মাধ্যমে।
सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी हैं। तू खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी ज़मीं है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। जोत से जोत जला के, आँख से आँख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी बोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा अंधेरा, तेरा बसेरा, सबकी भलाई में है, जग की भलाई में है। कुछ बिन सब कुछ सोना सोना, कुछ बिन कुछ न रहे जिंदा। घुटने टेक दे तेरे आगे, नाकामी हो शर्मिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। প্রতিপালন আর মাতৃত্ব শব্দ দুটি একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। স্বয়ং শিব বাবাও তার বাচ্চাদের পালনা দিতে ব্রহ্মাকে মাতৃরূপেই সামনে এনেছেন। মমতাময়ী মায়ের আঁচল ও প্রভু প্রেম, পবিত্র জীবন আর আধ্যাত্মিকতাকে সামনে রেখে সম্বল করে মাতৃরূপেণ সংস্থিতা দিদিদের উদ্দেশ্যে নৃত্য পরিবেশন করবে রনিতা মাতা।
প্রতিদিন আমরা যখন সেন্টারে থাকি এই মমতাময়ী মায়েদের আঁচলের তলায় থাকি, কত ছোট ছোট ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি, সেই দৃষ্টির আধারে থেকে আমরা পরিপক্ক হয়ে উঠি। শ্যামনগর সেন্টারে গেছি, অত বড় সেন্টার, কোন কোনায় কোন মা কোন বোন কোন মেয়ে কিভাবে রয়েছে, খেলো কি না খেলো সব দিদির নখদর্পণে ঘুরছেন, তার তদারকি করছেন। ছোট ছোট বোনেরা যখন খাবার থালা সামনে দিচ্ছে মনে হচ্ছে সত্যি গগনহার দেবী সেই খাবার নিয়ে আসছে। দিদি, আমাদের বড় দিদি যখন কোনো অনুষ্ঠান হয়, সেবা চলে, সেবা করতে করতে ভাই বোনেদের কারোর খেয়াল থাকলো না খেতে, দিদি ঠিক ডেকে তাদেরকে খাইয়ে দেন। অফিস থেকে কেউ এলে সেই রান্নাঘর পরিষ্কার হোক কি হোক, দিদি চা খাইয়েই ছাড়বেন, যার চায়ের নেশা, সেটা অবশ্য আমি। এই মমতাময়ী মায়েদের আঁচলের তো শ্রদ্ধা আমরা করবই প্রত্যেক বছর, আগামী বছরও আমরা আবার একত্রিত হব। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীল, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। জ্ঞান সমৃদ্ধ আত্মারাই স্বর্ণিম যুগ তৈরির কারিগর। সত্যখণ্ড ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয় তারা। নির্ভয় হলে দেশের গরিমা পুনর্জাগরণ করে। এমন জাগরণে যারা প্রতিনিয়ত কর্মরত থাকে, তারা বিহঙ্গ মার্গের সেবায় তারাই নিযুক্ত থাকতে পারে। তাদের শক্তি প্রতিফলিত হলে স্বয়ং পরমাত্মা সিদ্ধ হন, যাদের উদ্দেশ্যে স্বয়ং পরমাত্মা বলে ওঠেন বন্দে মাতারাম। সেই দেশকে জাগানোর জন্য নৃত্য পরিবেশন করবে শুভান্তিকা বোন। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীল, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। আপন প্রাণ তলে বাস করি, বসুধারে রাখে খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিলা উঠে, যেথা নির্বাণিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা দেয়। অজস্র সহস্র বিধ চরিতার্থ তাই, যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি। বিচারের সর্বপদ রাশি, অনুসরে করেন সদয় চিত্ত যেথা। তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের বেতা। নিজ হস্তে নির্ভয় আঘাত করিবে ভারতের সংসদে করুণ জগরিত। জাগাও মেরা দেশ, জাগাও
কল্যাণকর সৃষ্টি, তার নর নারী দুজনেরই সৃষ্টি। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার জন্য, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার জন্য ব্রতী হতে হবে আমাদেরকে। এরপরে নিবেদন সুচন্দ্রগণের নৃত্য। कंधे से मिला के कंधा पुरुषों से आगे खड़ी, बुलंदियों के शिखर पे हुनर के दम से अपने चढ़ी। माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी। मुट्ठी में बंद लेके सारा जहां, कदमों के आसमां पे छोड़े निशान। सपने सतरंग ले हवा के संग संग, थामे है डोर डस आंधी तूफान। अंधेरों में आशा के दीप जलाती है, रिश्तों की पूंजी से परिवार बनाती है। कुछ तो घर से ही कारोबार चलाती है, हर बार कर्तव्य मूल्य का सार बताती है। आदर्शों की प्रतिमूर्ति जो कहलाती है। कुछ बातें हैं बताने के लिए, इच्छा शक्ति, धर्म शक्ति, नारी शक्ति तदेव च। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति तदेव च। कुछ गाथाएं हैं गाने के लिए। मस्तक को ऊंचा करती लाखों पे भारी, हो उद्योग स्वयं का या फिर होवे सहकारी। घर हो या संस्थान समझे जिम्मेदारी, सूझबूझ और दूरदृष्टि ले निर्णय हितकारी। आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारतीय नारी। ये जो धुंध है शक्ति, धर्म शक्ति, नारी शक्ति तदेव च। कुछ भारी याद दिलानी तदेव च। कुछ ना समझी समझाने के लिए। হাজার দরবারের শ্রেষ্ঠ দরবার আমাদের এই বাপদাদার দরবার। এই বোন নিজে স্কুলের প্রোগ্রাম সেরেও এখানে চলে এসছে এমনই টানে। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে বাপদাদাকে। दादी माँ पूछो ना है कैसी दादी माँ, पूछो ना है कैसी दादी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ।